This is lecture number 6 of the series Intermediate Microeconomics 2 full course. So far, we have discussed general equilibrium. We have discussed a very important chapter of general equilibrium. That was chapter number 31, where we discussed some very, very important concepts such as Pareto efficiency, equilibrium, first welfare theorem, second welfare theorem. Now, we continue with general equilibrium with a slightly easier chapter. This is a chapter of welfare. It is also a part of general equilibrium unit number 2, but it is slightly easier. Also, this would, after this lecture, our 50% of the course would be finished, right? So, this finishes most of the course, and we know that general equilibrium itself carries a weightage of 30%, right? And 20% was monopoly. So, monopoly and general equilibrium, 50% will be finished after this lecture. And the rest of the 50%, 10% is monopolistic competition, which is a very fairly easy one. The rest of the 40% is something new. Okay, so let's complete this chapter in this video. Very small chapter, easy one. So now we have studied Pareto efficient points. Point number 1, 2, 3, 4, all are Pareto efficient. But when we talk from the society's point of view, अब suppose करो यहाँ पर the utility now, utility of A is UA and the utility of B is UB. So in this case, the utility of B is very high as compared to A. A's utility is very less, right? So this is one possible allocation we have. The society has one possible allocation to stay at point number A. The other possible allocation is extremely opposite allocation B, say. Now in this, B has a smaller utility, A has a higher utility. तो अब सोसाइटी किसको प्रेफर करेगी, दिस और दिस? Apart from individual preferences, in this chapter we evaluate that how society chooses between different points. So now let's call these allocations allocation X. Say this point, in this case there is an allocation X such that person A has 1 comma 5. Then there is this other allocation B. Then this person B has 6 comma 1. This is allocation X. The other allocation Y is person A has say 6 comma 1 and person B has 1 comma 5. So आप देख रहे हैं कैसे A और B के पास जो बंडल्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं. तो अब सोसाइटी को चूज करना है एक्स और वाई बंडल में, उसको चूज करना है कि ए को 1,5 दे या ए को 6,1 दे. The society has to decide which of them would be given. So suppose ये वाला x पॉइंट भी परेटो एफिशिएंट है, y वाला पॉइंट भी परेटो एफिशिएंट है, हमारी सोसाइटी में इक्विलिब्रियम से रीच हो रहा है. बट ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला, दोनों एजवर्थ बॉक्स के एक्सट्रीम के पॉइंट्स हैं. अब सोसाइटी को चूज करना है ये सोशल के लिए इंपॉर्टेंट है या ये सोसाइटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या दोनों के लिए सोसाइटी इनडिफरेंट है. तो नाउ this brings us to the concept of social welfare function or social welfare, right? So now adding together individual consumer preferences to construct some kind of social preferences, welfare function. तो कुछ दोनों की जो प्रेफरेंसेस है उनको ऐड करके एक जो फंक्शन बनता है उसको सोशल प्रेफरेंस फंक्शन बोलते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर इंडिविजुअल ए की भी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो और बी की भी मैक्सिमाइज हो. किस तरह से मैक्सिमाइज हो? ए को ज़्यादा वेटेज दें, बी को ज़्यादा वेटेज दें, दोनों को इक्वल वेटेज दें. तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं सोशल वेलफेयर फंक्शन. अब इस केस में अब क्या हो रहा है, दोनों को अगर सपोज करो एक ऐसा सोशल वेलफेयर फंक्शन है जहां पर हम चाहते हैं कि एक्स का क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो, दोनों के पास जो है x1 प्लस x2. बेसिकली x1 प्लस x2 क्या है, ये वाला जितना ए के पास है जितना x1 बी के पास है. तो हम चाहते हैं दोनों का ये मैक्सिमाइज हो. तो इस वाले केस में 7 है, इस वाले केस में भी 7 है. तो दोनों एलोकेशंस में एक्स और वाई में दोनों में सेम है. इसमें भी सोसाइटी का ये 7 हो रहा है, सोसाइटी को जो टोटल एक्स मिल रहा है इसमें भी. तो दैट मीन्स दोनों में कुछ फर्क नहीं है. लेकिन सपोज करो सोसाइटी वांट्स
कि जो इंडिविजुअल ए है उसका वेलफेयर ज्यादा मैक्सिमाइज हो एज कंपेयर टू इंडिविजुअल बी, सपोज करो। तो इस वाले एलोकेशन के हिसाब से ए को कितना मिल रहा है, 6। इस वाली एलोकेशन के हिसाब से टोटल यूनिट्स ए को कितने मिल रहे हैं, 7। तो सोसाइटी क्या बोलेगी, वाई चूज करो, राइट। तो वो फंक्शन जिसमें जिसमें ए बेटर ऑफ है, सोसाइटी वो चूज कर रही है। या तो वो फंक्शन जिसमें दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं उनका सम ऑफ गुड्स बेटर है, राइट। जिसमें तो सोसाइटी की जो प्रेफरेंसेस हैं बहुत तरह से हो सकती है। ये इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं, और जो दोनों की इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को सम करके जो आंसर निकलता है दैट इज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें फंक्शनल फॉर्म में, तो दैट बिकम्स social welfare function. So now I'll give you certain examples of social welfare function. For example, I have utility of A and I have utility of B. अब मेरा सोशल वेलफेयर फंक्शन कहता है कि जब दोनों की यूटिलिटी का सम मैक्सिमम हो, कि ए की यूटिलिटी और बी की यूटिलिटी, तो यहाँ पर क्या है, ये दो पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर ए की यूटिलिटी कह लो 5 थी और यहाँ पर बी की यूटिलिटी 6 थी। यहाँ पर ए की यूटिलिटी 4 थी और बी की यूटिलिटी 7 थी, इस वाले पॉइंट पे सपोज करो। तो ये दोनों पॉइंट्स थे। तो अब सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या कहते हैं, दोनों का सम करेंगे इस एलोकेशन का। यहाँ पर इसमें दोनों की यूटिलिटी प्लस करके 1 आ रहा है, इसमें लेट्स मेक इट 8, इन दोनों की यूटिलिटी प्लस करके 12 आ रहा है। तो सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या कहेगा, चूज दिस पॉइंट। इट विल नॉट से दिस, ऑल दो ये वाला जो पॉइंट है ये काफी इक्वल दिख रहा है हमें, कि ए के पास भी ज्यादा है बी के पास भी। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है, बी के पास बहुत ज्यादा, इन अनइक्वल पॉइंट है। पर सोसाइटी का वेलफेयर फंक्शन क्या कहते हैं, जहां पर दोनों की यूटिलिटी का सम मैक्सिमाइज होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है सोशल वेलफेयर फंक्शन का, जरूरी नहीं है कि प्लस की फॉर्म में हो। अब सोशल वेलफेयर फंक्शन ऐसा भी दिख सकता है, मिन ऑफ दिस। इसका मीनिंग क्या है, कि अगर यहाँ पर जो दोनों में से मिनिमम यूटिलिटी किसकी है, ए की, तो वो 5 है। यहाँ पर दोनों में से मिनिमम यूटिलिटी किसकी है, ए की, तो वो 4 है। तो वो कहेगा, सोशल वेलफेयर फंक्शन कहता है कि आप ये मैक्सिमाइज करो कि जिसकी मिनिमम यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो। तो ये वाला फंक्शन जो है वो ये वाला एलोकेशन चूज करेगा, राइट। और थर्ड तरह का सोशल वेलफेयर फंक्शन भी बन सकता है। ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज योर कॉब डॉगलेस टाइप फंक्शन, ठीक है। इसको डिटेल में हम नहीं जा रहे, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ हाउ सोशल वेलफेयर फंक्शन कैन बी कंस्ट्रक्टेड। सो नाउ वी विल डिस्कस सर्टन मेथड्स। ये तो देखो सोशल वेलफेयर फंक्शन का हमने डायरेक्टली एग्जाम्पल ही उठा के देख लिया कि दिस इज द एग्जाम्पल। जस्ट अ मिनट, हमने एक प्रॉपर एग्जाम्पल ही समझ लिया कि ये ऐसे दिखता है। अब कुछ रूल्स होते हैं एग्रीगेट करने के। यहाँ पर क्या था, प्लस कर दिया, मिन कर दिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, अब हमको उनको एक सोशल प्रेफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास 3 इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल नंबर ए, इंडिविजुअल नंबर बी एंड इंडिविजुअल नंबर सी, ठीक है। और 3 एलोकेशंस है, ये जो एक्स वाई जेड है ये क्या है, एलोकेशंस। एलोकेशंस माने इसमें एक्स एलोकेशन में ए के पास 7,1 है, तो यानी अगर 2 गुड्स थे तो उसके पास गुड 1 का कितना अमाउंट है, 7। गुड 2 का कितना अमाउंट है, 1। वाई में उसके पास इसका 8 है, इसका 3 है सपोज। लेकिन ये प्रेफर कौन सी एलोकेशन करता है, एक्स, यानी जिसमें वेट वेट ये देयर इज सम एरर। बेसिकली ये प्रेफर्स एक्स जिसमें एक्स का अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज मे बी वो ये वाला जो गुड नंबर 1 है उसको ज्यादा वैल्यू करता है, तो एक उसको ज्यादा मिल गया तो फटाफट उसने ये एलोकेशन जो थी वो चूज कर ली। तो ये मैं वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग इज जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दीज एलोकेशंस आर मेड। जस्ट सो ये रैंकिंग्स है ए की, उसके लिए एक्स एलोकेशन इज सुपीरियर टू वाई एंड दिस। तो 3 एलोकेशंस की इनको चॉइस दी। सपोज करो एक्स वॉज 7,1, वाई वॉज समथिंग 8,9 एंड सो ऑन, ऐसे करके जेड वॉज समथिंग समथिंग। तो ऐसे करके 3 में तीनों कंज्यूमर्स को ऑप्शन दी। तो ए कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी एक्स है, फिर वाई है, जेड है।
बी कहता है मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वाई है, जेड है, देन एक्स है। सी कहता है मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जेड है, एक्स है एंड वाई है। अब हम क्या करेंगे, अब तीनों की जो इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, नाउ आई एम अ सोशल प्लानर, मुझे एक चूज करना है कि सोसाइटी में या तो एक्स आ सकता है या वाई आ सकता है या जेड आ सकता है। अब एक्स आएगा, एक्स का मतलब क्या है कि ये जो 7,1 है ये ए के लिए है, इसमें कुछ एलोकेशन बी को मिलेगी, इसमें कुछ एलोकेशन सी को मिलेगी। तो मुझे डिसाइड करना है कि एक्स आएगा जिसके हिसाब से ए बी और सी को कुछ मिलेगा, वाई आएगा या जेड आएगा। अब हो सकता है, अब देखो अगर मैं एक सोशल प्लानर हूँ, अगर मैं ए की टीम में हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, एक्स ले आओ। अगर मैं बी की टीम में हूँ मैं बोलूंगी वाई एंड जेड। बट द थिंग इज दैट आई हैव टू बी न्यूट्रल, आई हैव टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ ऑल थ्री। बट द प्रॉब्लम हेयर अराइजेज इज कि एक का जो बेनिफिट है वो दूसरे का नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक्स चूज कर लिया तो एक का तो फायदा है बट बी का नुकसान है, वो उसको नहीं वैल्यू करता। तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अब मेरे को क्योंकि एक सॉल्यूशन चाहिए, आई विल डू मेजोरिटी वोटिंग। मेजोरिटी बेसिकली जो मेजोरिटी प्रेफर करेगी वही होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ तीनों के पास आई गो एंड आई टेल देम यू हैव अ चॉइस बिटवीन एक्स एंड वाई। सो एक्स वर्सेस वाई। Now what happens is जब whenever I go to A and B they prefer X over Y। A और B क्या बोलते हैं, I like X, तो X wins यहाँ पर। उसके बाद अब मुझे पता है मेरे पास C बचा है। अब I अब इन दिस केस सी जो बेसिकली जो पर्सन है उसकी चॉइस नहीं मानी जाती क्योंकि मेजोरिटी किसकी है, एक्स ओवर वाई। तो यहाँ पर सी की चॉइस नहीं मानी जाती। उसके बाद अब ये जो एक्स जीत गया, एक और चीज़ है जेड। जेड भी एक थर्ड बंडल है। अब मैं एक्स वर्सेस वाई को तीनों से जाकर पूछती हूँ कि आप कौन सा प्रेफर करोगे इन दोनों में। तो यहाँ पर क्या होता है, जब मैं एक्स वर्सेस वाई करती हूँ तो ए किसको प्रेफर करता है, एक्स को। जब मैं बी से पूछती हूँ तो वो जेड को प्रेफर करता है, जब मैं सी से पूछती हूँ तो वो जेड को। तो इसमें दो लोग जेड को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसमें बी एंड सी प्रेफर जेड। अगेन मेजॉरिटी किसको प्रेफर करती है, जेड को। तो इसमें फाइनल आंसर होता है कि जेड विंस। अब इसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी वोटिंग। इसको जो सोशल प्लानर ने, सो आई वॉज द सोशल प्लानर, मैंने डिसाइड करने के लिए क्या चूज करा, मेजॉरिटी वोटिंग। अब मेरे पास दूसरा तरीका ये है, अब मैं इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो मेजॉरिटी वोटिंग होती है ये ट्रांजिटिव नहीं होती। कैसे, लेट्स सी। अब मैंने क्या करा, एक्स और वाई की जगह मैंने स्टार्टिंग में सबसे पूछा आप एक्स और जेड में से चूज कर लो। तो इसमें मैं बी और सी के पास गई, बी और सी बोले कि आई वॉन्ट जेड। और क्योंकि दोनों मेजॉरिटी है, तीन लोगों में से दो लोग अगर एक चीज के लिए बोल रहे हैं तो वो मेजॉरिटी, मेजॉरिटी तीन लोग, तो दो लोग एक के लिए बोलेंगे तो वो जीत जाएगा। सो दैट मीन्स इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज जेड विंस। अब व्हाट हैपन्स इज जेड के साथ वाई को मैंने कंपटीशन कराया, देन अब क्या होता है, मेजॉरिटी जो होती है वो वाई प्रेफर करती है तो वाई विन हो जाता है। तो अब मैं ये देखती हूँ कि जब मैंने इस ऑर्डर में, सो बेसिकली जब मैंने ऑर्डर चेंज करा, दिस वॉज माई ऑर्डर वन, तो हु वन, जेड विंस। दिस वॉज माई ऑर्डर टू, कि मैंने पहले एक्स और जेड को कंपेयर करा एंड सो ऑन, तो वाई वन, राइट। सो दोनों का जो विनर है वो अलग है। तो यानी कि जिस ऑर्डर में, सो अगर मैं मेजॉरिटी वोटिंग करूं तो मैं जिस ऑर्डर में वोटिंग कराऊंगी उस ऑर्डर से मेरा विनर डिसाइड होगा। सो बेसिकली इन केस ऑफ मेजॉरिटी वोटिंग, ऑर्डर ऑफ वोटिंग मैटर्स। तो यानी ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो यानी द चॉइसेस विल बी डिस्टॉर्टेड बाय थर्ड थिंग्स। सो ऑर्डर से डिस्टॉर्ट है, इसका मतलब ये है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में मैं, आई एम अ सोशल प्लानर, सो इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, अब यहां पर क्या हो रहा है, एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई, राइट, एंड जेड इज प्रेफर्ड ओवर वाई। So that means Z is preferred over X if I go by the first. But what I see is
When I compare both of these, for example, Z is preferred over X, then I see Y is preferred over X. That implies Y is preferred. Y is preferred over, right? So ये वाला और ये वाला ट्रू नहीं है. सो सोशल प्लानर ये देखता है कि उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं दे आर नॉट ट्रांजिटिव. What were transitive preferences? If I prefer X over Y and I prefer Y over Z, that automatically means that I have to prefer X over Z. But अगर मैं इसमें से दो को कंपेयर करती हूँ और तीसरे को कंपेयर करती हूँ, अब मैं इससे डायरेक्टली ये जो कॉमन वाला है एक्स और वाई को कंपेयर करती हूँ, तो मेरा आंसर यहाँ पर गलत आ जाता है. जब मैं डायरेक्टली ऐसे ट्रांजिटिविटी वाला रूल लगाकर कंपैरिजन करती हूँ तो दैट मीन्स मेरी ट्रांजिटिविटी यहाँ ब्रेक हो रही है. उसी तरह जब मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर करा, x is preferred over y and z is preferred over y, so that means z is preferred over y, x, right? So in this case your rules have been broken. ये वाला जो रूल है ये हमारा ब्रेक डाउन हो गया है. ट्रांजिटिविटी यानी हमारी ब्रेक डाउन हो गई है जब हमने दो यहाँ पर दो कंपैरिजन करके थर्ड कंपैरिजन के बारे में कुछ एज्यूम करा. सो दैट मीन्स ये जो मेजॉरिटी वोटिंग है दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ वोटिंग एंड इट ब्रेक्स ट्रांजिटिविटी. So, what do we conclude? Social preferences resulting from majority voting aren't well behaved preferences. One of the property of well behaved preferences that we did in semester 3 was that preferences were transitive. They are not transitive. सो अब हम क्या करते हैं, थर्ड टाइप ऑफ वोटिंग करते हैं, दैट इज रैंक ऑर्डर वोटिंग. तो अब हम मेजॉरिटी को नहीं सपोर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, रैंक्स को कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एजेंट्स हैं ए और बी. ए कहता है कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, एक्स ओवर वाई. तो अब हम क्या करेंगे, ए की जब वो वोटिंग कैंसिल कंसिडर करेंगे तो एक्स को पॉइंट नंबर 1 दे देंगे, राइट. बी के लिए एक्स की क्या वैल्यू है, 2, रैंक 2. जो कम रैंक है यानी उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो एक्स का क्या नंबर आ गया, 3. वाई का जब हमने कैलकुलेट करा वो भी 3 आया. तो हम ये देखते हैं एक्स और वाई में टाई होता है. अब ये टाई हो रहा है यानी कुछ कंक्लूजन नहीं है, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, अब जो प्रेफरेंसेस है उसका थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करते हैं. वी इंट्रोड्यूस्ड वन आउटकम दैट इज जेड. सो व्हाट वी डू इज, अब ए की ऑर्डरिंग क्या है, एक्स वाई जेड, उसको लीस्ट प्रेफरेंस है. लेकिन बी की ऑर्डरिंग ऐसी है कि वो वाई ओवर एक्स तो प्रेफर करता है, लेकिन जेड को हमने मिडिल में यहां रख दिया. अब रैंक्स कैलकुलेट करते हैं. एक्स की रैंक क्या आएगी, ए के लिए इट इज 1, बी के लिए एक्स की रैंक 3, टोटल 4. वाई की रैंक क्या आएगी, यहां पर 2, यहां पर 1, 3. तो हम ये देखते हैं कि वाई की रैंक कम है तो वाई विल विन. पहले जब हमारा टाई हो रहा था लेकिन एकदम से वाई कैसे विन कर दिया, तो बेसिकली आउटकम हैज बीन मैनिपुलेटेड by introducing new alternatives. What was the new alternative? Z. That changed the final ranks of the relevant alternatives. जैसे ही हमने Z को इंट्रोड्यूस करा हमारा आउटकम बिल्कुल पलट गया. So that is the main point. By introducing new agents, my outcome has been reversed. So that means रैंक ऑर्डर वोटिंग में भी कुछ गड़बड़ है. जैसे ही हम फालतू के आउटकम्स इंक्लूड करते हैं तो उससे ऑर्डर चेंज हो जाता है. सो दैट मीन्स आउटकम कैन बी मैनिपुलेटेड बाय एस्ट्यूट एजेंट्स. इस तो यानी इन दोनों जो रूल्स हैं उनकी अपनी शॉर्टकमिंग्स है. सो आइडियल सोशल
मैकेनिज्म क्या है? सो अगर मैं सोशल प्लानर हूँ तो ना मैं मेजॉरिटी वोटिंग चूज कर सकती हूँ क्योंकि वो ट्रांजिटिव नहीं है। नीदर आई कैन चूज रैंक ऑर्डर वोटिंग। वाई? बिकॉज द आउटकम कैन बी मैनिपुलेटेड बाय एस्ट्यूट एजेंट्स, यानी कि हम कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रहे हैं तो उससे बेसिकली न्यू ऑल्टरनेटिव जैसे तो रैंकिंग चेंज हो रही है। सो नाउ आई हैव सम रूल्स that I have to follow when I want to construct a social welfare function based on individual preferences. Let's see the ideal rules. Given any set of complete, reflexive and transitive individual preferences, तो अगर हमें पता है कि individual preferences ये हैं यानी well behaved हैं, the social decision mechanism should result in social preferences that in result in same properties. Basically मैं एक ऐसा social welfare function बनाऊंगी जो कंप्लीट है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो ये वाला प्रिंसिपल इज वायलेटेड बाय, जस्ट अ मिनट, दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड बाय मेजॉरिटी voting. Now, because the social preferences created were not transitive. If everybody prefers x to y, then social preference should rank over x over y. तो अब देखो, जैसे हमें पता है कि everybody wants x over y, everyone is preferring this, तो society should also prefer x over y. थर्ड पॉइंट, अब ये वाला जो है, ये तो अभी तक सच था नहीं, सबकी प्रेफरेंसेस अलग थी, और अगर ये सच होता तो ना रैंक ऑर्डर वोटिंग इसको वायलेट करती ना मेजोरिटी वोटिंग, तो दोनों इसको सेटिस्फाई करती इस प्रिंसिपल को। Preferences between x and y should depend only on how people rank x and y, not on how they rank other alternatives. इसको ये कौन रैंक और ऑर्डर वोटिंग जो है इसको वायलेट कर रही है? रैंक ऑर्डर वोटिंग ये थर्ड वाले को वायलेट करती है। तो यानी दोनों रूल्स में से कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो तीनों सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट रूल मेजॉरिटी वोटिंग ब्रेक हो रही है, ब्रेक करता है। थर्ड रूल रैंक ऑर्डर वोटिंग करता है। तो यहाँ पर एक एरोज का इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम आता है। एरो बोलता है कि अगर आप एक सोशल प्लानर हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई ऐसा सोशल फंक्शन बना लो जिससे फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी तीनों सेटिस्फाई होती है। और अगर पॉसिबल है तो यानी आप एक डिक्टेटर हो। डिक्टेटर हो यानी कि आप सिर्फ अपनी प्रेफरेंसेस जो है वो इम्पोज कर रहे हो, और बाकी लोगों का केयर नहीं कर रहे, तभी आप ये सब तीनों कर सकते हो। दैट मीन्स दिस गिव्स अ एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। तो अब एक प्रॉपर्टी तो तीनों में से गिव अप होनी पड़ेगी, तो हम ये बोलते हैं कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी गिव अप करना सही नहीं है। द बेस्ट इज ये वाली प्रॉपर्टी हम फिर भी गिव अप कर सकते हैं, बट फर्स्ट वाली वी कैन नॉट गिव अप। सो दैट मीन्स रैंक ऑर्डर वोटिंग इज स्टिल बेटर देन मेजॉरिटी वोटिंग। नाउ दिस एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी तीन एजम्पशंस, इसकी जो लैंग्वेज है, आई हैव रिटन प्योरली बुक की लैंग्वेज। और ये जब आप ये समझा रहे हैं ये आइडल रूल्स, तो आप ये भी साथ साथ समझा सकते हैं कि मेजॉरिटी वोटिंग कैसे यहाँ पर ट्रांजिटिविटी ब्रेक करती है, राइट। फिर आप इसमें ये बता सकते हैं कि कैसे रैंक ऑर्डर वोटिंग थर्ड प्रिंसिपल जो है वो ब्रेक कर रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, सोशल वेलफेयर फंक्शंस। अभी तक हमने जो बात करी थी, हमने सोशल वेलफेयर रूल की बात करी है कि अगर मैं एक सोशल प्लानर हूँ, मुझे एक फंक्शन बनाना है, तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब सपोज उन सब चीज़ों का ध्यान रख लिया और एक फंक्शन आ गया। सब चीज़ों का तो ध्यान हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो ब्रेक होगा भी, नो। बट नाउ सपोज करो मैंने कुछ ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमें पता है पर्सन आई प्रेफर्स एक्स टू वाई इफ एंड ओनली इफ। सब ऑब्वियसली अगर किसी को एक्स से ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, एक्स एलोकेशन मतलब इसमें पर्सन ए को इतना मिलेगा, पर्सन बी को इतना। तो अगर कोई भी पर्सन आई है उसको इससे ज्यादा मिलती है यूटिलिटी, तो नेचुरली वो एक्स एलोकेशन प्रेफर करेगा ओवर वाई, राइट। अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल एन है, ठीक है, दो एलोकेशंस है, एक एक्स और वाई। अब एलोकेशन एक्स का मतलब क्या है, इसमें सब, इसमें अगर एन इंडिविजुअल्स हैं तो हमें पता है कि इंडिविजुअल वन को कितना कितना मिलेगा गुड, एक इंडिविजुअल टू को कितना गुड मिलेगा। तो हर इंडिविजुअल को कितना गुड मिलेगा ये एक्स एलोकेशन दिखाती है। फिर दूसरी वाई एलोकेशन है जो बताती है फर्स्ट इंडिविजुअल को कितना गुड मिलेगा, सेकंड को कितना गुड मिलेगा। तो ये वर्सेस है।
हर इंडिविजुअल को डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो ये बोलते हैं कि हम वी विल प्रेफर, सो हम क्या करेंगे, सब इंडिविजुअल्स की यूटिलिटी को सम कर लेंगे, ठीक है। एक तो एक्स एलोकेशन के हिसाब से और एक वाई एलोकेशन के हिसाब से। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये एक्स एलोकेशन है, ये वाई। अब ये इंडिविजुअल 1 है 2 है, ये एन इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। सपोज कर लो सिर्फ 4 इंडिविजुअल्स हैं। अब फर्स्ट एलोकेशन के हिसाब से एक्स ए की गुड की बात करते हैं, इसको 2 मिलेगा, 3 1 5। ये दूसरी एलोकेशन के हिसाब से इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, ठीक है। तो अब सपोज करो ये यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसको फर्स्ट इंडिविजुअल को एक्स एलोकेशन से 2 यूटिलिटी मिलेगी, वाई एलोकेशन से 1 यूटिलिटी मिलेगी। सेकंड इंडिविजुअल को एक्स एलोकेशन से इतनी इतनी। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्स एलोकेशन से जो हर इंसान को यूटिलिटी मिलेगी उसका सबमिशन कर देंगे। 6 11 3 + 3 6 + 9। तो हम ये देखते हैं अगर हमने सब यूटिलिटीज को ऐड करा तो एक्स एलोकेशन से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो हम बोलेंगे सोशली वी प्रेफर एक्स ओवर वाई, राइट। तो इसमें अगेन जब हम सिर्फ प्लस कंसिडर कर रहे हैं तो हम ध्यान नहीं रख रहे कि डिस्ट्रीब्यूशन वाइज वो कॉम्बिनेशन कैसा है। सोशल प्लानर इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ही इज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गुड्स अवेलेबल। सो फॉर एग्जाम्पल ये एलोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर हम कर देते हैं 2 2। एक एलोकेशन ये है, सबके पास 2 2 2 है, तो यहाँ 2 + 4 + 2 + 2, यहाँ पर 8। अब यहाँ पर क्या है, 2 के पास 0 है। ये दो एलोकेशन है एक्स और वाई। तो अगर आप देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है एक्स एलोकेशन में, और वाई जो है बहुत ज्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सम ऑफ यूटिलिटीज मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो सोशल प्लानर विल प्रेफर एक्स। बेसिकली ही विल नॉट टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जब हम सिर्फ यूटिलिटीज को ऐड करते हैं। तो इसमें सोशल वेलफेयर फंक्शन कैसा दिखता है, ऐसा। बेसिकली वी आर जस्ट एडिंग द यूटिलिटीज, यू आई का मतलब है आई इज द इंडिविजुअल। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम सब इंडिविजुअल्स की यूटिलिटी ऐड करें अंटिल व्हाट, इंडिविजुअल, अंटिल nth इंडिविजुअल। इसको हम बोलते हैं क्लासिकल यूटिलिटेरियन फंक्शन, और इसको बेंथामाइट यूटिलिटी फंक्शन भी कहा जाता है, जिसमें वेलफेयर फंक्शन निकालने के लिए सब इंडिविजुअल्स की यूटिलिटी को ऐड किया जाता है। बट यहाँ पर एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम हर इंडिविजुअल की यूटिलिटी को कुछ वेट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। अब हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि ये जो इंडिविजुअल 1 है ये बहुत ही पुअर इंडिविजुअल है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा यूटिलिटी फंक्शन बनाएंगे, वेलफेयर फंक्शन बनाएंगे, जहां हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं वेलफेयर, लेकिन हम ये जो फर्स्ट इंडिविजुअल है इसकी यूटिलिटी को ज्यादा वेटेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.9 दो इंडिविजुअल्स हैं, और ये यूटिलिटी ऑफ पर्सन 1 A प्लस 0.1 यूटिलिटी ऑफ पर्सन बी। तो अब यहां पर आप ये देख रहे हो कि हम दोनों की यूटिलिटी का सम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, लेकिन इसकी यूटिलिटी का वेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू यूटिलिटी ऑफ बी। तो यानी कि हम, क्योंकि जो पर्सन ए है वो, क्योंकि इंडाउमेंट्स उसकी ऑलरेडी से पुअर थी, तो हम चाहते हैं कि उसकी यूटिलिटी ज्यादा मैक्सिमाइज हो एज कंपेयर टू बी। तो हम इसको वेटेज ज्यादा दे देंगे, थोड़ा सा इक्वालिटी कंसर्न्स को ध्यान रखने के लिए। सो अब ये वाला जो है, ये यूटिलिटी अगर देखोगे फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करो, यहाँ पर क्या आ रहा है, AIUI। सो दिस इज द वेटेड यूटिलिटी फंक्शन, ओके। ये तुम्हारा क्लासिकल है और ये तुम्हारा वेटेड यूटिलिटी फंक्शन है। यूटिलिटीज को ऐड कर रहे हैं लेकिन वेटेज दे रहे हैं। अब दूसरा तरह एक और बहुत फेमस फंक्शन है जिसको हम कहते हैं रॉल्सियन, रॉल्स का वेलफेयर फंक्शन। इसमें क्या होता है, मिन ऑफ UN। ये मैंने पहले भी समझाया था इंट्रोडक्शन में। बेसिकली इसमें हम उस इंसान की यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा पुअर है, जो सबसे ज्यादा वर्स ऑफ है। तो इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं।
बहुत सारी एलोकेशन है, एलोकेशन ए, एलोकेशन बी। इस वाले में हर किसी के पास दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों के पास इस एलोकेशन में 5-5 है। इस एलोकेशन में एक के पास 1 है, दूसरे के पास 11 है, राइट। तो अब इसमें जस्ट अ मिनट। सो दो एलोकेशंस हैं, ठीक है। एक एक ये एलोकेशन, एक ये एलोकेशन। इसमें ए इंडिविजुअल के पास 10 है, बी इंडिविजुअल के पास 15 है। इसमें ए इंडिविजुअल के पास 11 है, बी इंडिविजुअल के पास 5 है। अगर मैं देखूं तो इसमें टोटल दोनों का करूं तो 25 आता है, इन दोनों का टोटल करूं तो 16 आता है। अगर मैं बेंथलीन टाइप के क्लासिकल यूटिलिटी फंक्शन की बात करूं तो मैं ये वाली एलोकेशन चूज करूंगी, जहां पर ए को 10 मिलता है, बी को 15 मिलता है। लेकिन अगर मैं रॉल्स की बात करती हूँ तो रॉल्स क्या कहता है, मैं वो यूटिलिटी फंक्शन चूज करूंगा जहां पर जो वर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल है वो बेटर है। तो इसमें द वर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल इज मैक्सिमाइज मिन। अगेन रॉल से भी देखा जाए तो दिस विल बी चूजन दिस, बिकॉज अगर मैं इसको मैक्स ऑफ मिन ए एंड बी, इस वाले केस में मिनिमम क्या है दोनों का, 10। इस वाले केस में दोनों का मिनिमम क्या है, 5। तो कौन सा मिनिमम ज्यादा है, इसका मिनिमम ज्यादा है, तो यानी वी चूज दिस फंक्शन। तो हम रॉल से भी सेम फंक्शन चूज करेंगे और हम बेसिक क्लासिकल से भी सेम फंक्शन यूज करेंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट, अब इस वाले में देखते हैं। ये ए के पास है, ये बी के पास, एलोकेशन एक्स, एलोकेशन वाई। तो इसमें अगर हम ऐड करें तो ये 24 बनता है, ये वाला बनता है मेरा 16। अगर मैं क्लासिकल के हिसाब से देखूं तो व्हाट विल आई चूज, आई विल चूज दिस वन, एक्स। लेकिन अगर मैं रॉल्स के हिसाब से देखूं तो इसका मिनिमम क्या है, 4। इसका मिनिमम क्या है, 5। आई विल चूज वाई। तो इसमें जो मिनिमम है वो उसको मैक्सिमाइज कर रहा है रॉल्स, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द व्यू ऑफ सोसाइटी। सोशल वेलफेयर फंक्शन इज हाउ सोसाइटी wants the allocations to be. Pareto efficiency is more about कि कोई वेस्टेज नहीं है, कोई डेड वेट लॉस नहीं है। सोशल वेलफेयर फंक्शन इज अबाउट कि मैं क्या चाहती हूँ, कैसी डिवीजन हो मेरी सोसाइटी की। तो सोसाइटी में किसके पास ज्यादा हो, किसके पास कम हो, इंश्योरिंग देयर इज एफिशिएंसी। That is how I choose my social welfare function. So these were some examples of social welfare function. Now let's come to welfare maximization. तो अब social planner का काम क्या होता है कि वो welfare maximize करे with respect to these feasibility constraints. Why these are feasibility constraints? xi1 across all individuals. तो यानी कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है feasible वाला, ये शो करती है कि ये जो इंडिविजुअल 1, ये गुड 1 है, ऊपर है, ऊपर वाला मतलब गुड 1। इंडिविजुअल 1 के पास जितना गुड है, इंडिविजुअल 2 के पास जितना गुड है, और कितने इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल n के पास जितना गुड है, दैट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड 1। टोटल अमाउंट ऑफ गुड 1 इज शोन बाय बिग एक्स, ओके। सो ये जो कंडीशंस हैं ये हमारी फिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, ठीक है। अब हमें सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना है ऐसे कि हमारा जो फिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो naturally, because we want the demand and supply to be equal when we maximize the utilities. सो नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि जो भी आंसर सोशल वेलफेयर फंक्शन का आएगा,
इज इट परेटो एफिशिएंट? सो जब मैं सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती हूँ, जब मैं डिसाइड करती हूँ कि इंडिविजुअल वन को कितना मिलेगा गुड, गुड वन टू थ्री जितने भी गुड्स हैं, इंडिविजुअल टू को कितने मिलेंगे गुड्स, इंडिविजुअल थ्री, इनका डिवीजन क्या रहेगा टोटल गुड्स का, तो क्या ये परेटो एफिशिएंट है? तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि जो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर पर्सन ने, जो वहां प्लानर था, उसने जो एलोकेशन चूज करी वो परेटो एफिशिएंट नहीं था। तो यानी कि अगर वो परेटो एफिशिएंट नहीं था तो उसका मीनिंग क्या है? यूटिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पर्सन कैन बी इंक्रीज विदाउट डिक्रीजिंग द यूटिलिटी ऑफ अदर पर्सन। अगर कोई भी चीज परेटो एफिशिएंट नहीं होती तो उसका मतलब तो यही होता है ना कि अभी यूटिलिटी और बढ़ सकती है किसी भी एक इंसान की विदाउट रिड्यूसिंग द अदर पर्सन यूटिलिटी। तो पॉइंट ये है कि अगर किसी भी एक इंसान की यूटिलिटी बढ़ सकती है, तो उस इंसान की जब यूटिलिटी बढ़ेगी तो हमारा सोशल वेलफेयर भी तो बढ़ेगा। ये क्यों बढ़ेगा? बिकॉज देयर इज एन assumption दैट welfare function, that means social welfare function will be increasing in each consumer's utility। मतलब जब भी किसी भी एक कंज्यूमर की यूटिलिटी बढ़ेगी तो हमारी सोसाइटी का सोशल वेलफेयर भी बढ़ेगा। तो ये एक एजम्पशन हम लगाते हैं इन द वेरी स्टार्टिंग। तो अगर मैं ये एजम्पशन को मानूं और मैं मानूं कि कोई परेटो एफिशिएंट पॉइंट नहीं है, तो यानी कि यूटिलिटी बढ़ सकती है किसी भी एक एजेंट की, और अगर यूटिलिटी बढ़ सकती है तो वेलफेयर भी बढ़ सकता है। और अगर वेलफेयर बढ़ सकता है तो दैट मीन्स जो पहले सोशल वेलफेयर उसने जो चूज किया था एलोकेशन, दैट वाज नॉट परेटो एफिशिएंट, दैट वाज नॉट मैक्सिमम वेलफेयर, राइट? इट वाज, वेलफेयर वाज नॉट मैक्सिमम ऑन द फर्स्ट place. So that means that contradicts the fact that allocation is not Pareto efficient. अब हम क्या करते हैं इसी वाले चीज को, ये तो हमने समझ लिया कि जो भी प्लानर चूज करेगा वो परेटो एफिशिएंट होगा। क्यों होगा? वी हैव सीन। तो हम इसी चीज को डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमें पता है कि एक एजवर्थ बॉक्स है, परेटो एफिशिएंट कौन से पॉइंट्स हैं? ये सारे, राइट? तो यानी जो भी वो वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग पॉइंट होगा वो हमें पता है कि वो परेटो ऑप्टिमम तो होगा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कर्व पे पहले ही सारे परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोशल वेलफेयर जो प्लानर है वो एक पॉइंट इन पॉइंट्स में से चूज करेगा। सो व्हाट वी डू इज, यहाँ पर इसको चूज करने के लिए, this is the x-axis that shows the utility of person 1. This is the y-axis that shows the utility of person 2. अगर हम इन दोनों को मार्क करें, सो फॉर एग्जाम्पल दीज आर ऑल द यूटिलिटी पॉसिबिलिटीज, जो इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये वाले, इस वाले बाउंड्री को, ये फ्रंटियर बेसिकली उन पॉइंट्स को दिखाता है सच दैट अगर U1 की यूटिलिटी इतनी है तो U2 की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये तो यानी ये परेटो एफिशिएंट पॉइंट है। अगर U1 की यूटिलिटी इतनी है तो मैक्सिमम U2 की कितनी हो सकती है, इतनी। सीइंग द फैक्ट कि परेटो एफिशिएंसी है, तो ये सारे परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स को हमने मार्क करा है जहां पर यूटिलिटी ऑफ वन पर्सन इज मैक्सिमम गिवन द यूटिलिटी ऑफ अदर पर्सन, ओके। और इसके जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं, these are in the possibility set but we will not choose them, why? Because we they are not Pareto efficient। अब ये तो आ गया एक ऐसा पॉइंट कि जो मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें से सोशल वेलफेयर जो प्लानर है वो चूज कर सकता है। अब दूसरा जो चीज है, वेलफेयर फंक्शन। वेलफेयर फंक्शन, हाँ, अभी हमने देखा कि बहुत तरह के होते हैं। एक हमने जो डिफाइन करा, यू ए प्लस यू बी, तो ये क्योंकि हमें दिख रहा है, इसमें वेलफेयर फंक्शन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा दोनों की। यहाँ पर क्या, यूटिलिटी वन यूटिलिटी टू, इसको एक्स और वाई की तरह ट्रीट करो। तो हमें पता है दोनों जब एडिशन होती है तो वो स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे। ये जो ऐसे है यहाँ पर, ये वाला सोशल वेलफेयर फंक्शन। और ये यहाँ पर जब हमने ऐसे कन्वेक्स बनाया तो यानी कैसा दिखता होगा फंक्शन, यू ए की पावर अल्फा, यू बी की पावर बीटा, वन माइनस अल्फा, थोड़ा सा कॉप डॉगलस जैसा वेलफेयर फंक्शन दिखता होगा, राइट? ये यूटिलिटी फंक्शन नहीं है, ये वेलफेयर फंक्शन है। तो वेलफेयर फंक्शन की तरह जैसे हमारे आइसोकॉन्स बनते हैं वैसे ही हमारे आइसो वेलफेयर कर्व्स बनते हैं। आइसो वेलफेयर कर्व्स मानी
वो दो कॉम्बिनेशन दोनों की यूटिलिटी के सच दैट मेरा जो सोशल वेलफेयर है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो अगर सपोज मेरा ऐसा सोशल वेलफेयर फंक्शन है, मैंने उसको ड्रॉ कर लिया, सपोज करो मैंने यहाँ ड्रॉ करा, ठीक है, अब यहाँ पर बाकी ये जो सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर सोशल वेलफेयर तो सेम है हर पॉइंट पे, लेकिन क्या हर पॉइंट परेटो एफिशिएंट है, एफिशिएंसी है? नहीं है। सिर्फ दो पॉइंट पे परेटो एफिशिएंसी है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये हमारे यूपीएफ को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। नाउ हम ये देखते हैं कि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की जगह ये पॉइंट चूज करें, पॉइंट ई, तो हमारा सोशल वेलफेयर जो है वो बढ़ रहा है। और पॉइंट ई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर परेटो एफिशिएंसी भी है और वेलफेयर भी मैक्सिमम है। तो दैट मीन्स ई इज द पॉइंट दैट द planner will choose. That means he will choose a utility of this for individual one and utility of this much for individual two. Why he chooses that? Because this is the point जो परेटो एफिशिएंट भी है और इसमें वेलफेयर भी मैक्सिमम होगा। अच्छा, प्लानर कोई यहाँ पर क्यों नहीं पॉइंट चूज कर सकता? बिकॉज ये इकोनॉमी के प्रोडक्शन सेट में नहीं है, राइट। ये वाले जो पॉइंट्स हैं सिर्फ यही पॉइंट्स है जो हमारे पास अवेलेबल है एजवर्थ बॉक्स के। तो हमने कुछ नहीं करा, हर एक जो पॉइंट है उसमें ए की कुछ यूटिलिटी और बी की कुछ यूटिलिटी है, उसको बस प्लॉट करा है ये यूपीएफ पे, ठीक है। नाउ दिस, ये तो पॉइंट आ गया। अब ऑथर क्या कहता है कि अगर हम, तो फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ दैट, जब हमारे पास ये यूपीएफ है, हर पॉइंट यूपीएफ के हर पॉइंट के लिए there would be some welfare function such that this point will be chosen. For example, suppose मेरा welfare function ऐसा दिखता है, right? इसमें कुछ नहीं करी मैं, अल्फा और की वैल्यूज ही तो चेंज करी हूँ। अब मेरा वेलफेयर फंक्शन ऐसा दिखता है तो ये पॉइंट हो गया, ऐसा दिखता है तो ये पॉइंट हो गया। तो एवरी पॉइंट इज वैलिड, हर पोरेटो एफिशिएंट। तो बेसिकली यहाँ पर ये पॉइंट चूज होगा एजवर्थ बॉक्स का। देर विल बी सम सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन क्या है कि मैं ये जो बी पर्सन है इसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रही हूँ क्योंकि इस पॉइंट पे बी के पास मैक्सिमम है। ये वाला पॉइंट तब होगा जब मैं ए पर्सन की यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक दूसरा सोशल फंक्शन है, यहाँ एक दूसरा सोशल फंक्शन है, डिपेंडिंग ऑन द प्रेफरेंसेस ऑफ अ सोसाइटी। तो अगर सोशल फंक्शन यहाँ पर है तो ये पॉइंट, अगर मैं सोशल फंक्शन ये वाला चूज करती हूँ तो ये पॉइंट। सो द पॉइंट विच विल बी चूजन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सोशल फंक्शन आई एम एज्यूमिंग। फॉर एग्जाम्पल अब हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने किस तरह का सोशल फंक्शन चूज करा, ये वाला सिंपल ऐसा वाला। इस मेरे केस में हमें पता है स्ट्रेट लाइन बनेगा। सोशल फंक्शन इस पूरे कर्व पे तुम्हारा जो वेलफेयर है वो सेम है इस पूरे लाइन पे। और ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा यूपीएफ है, यूटिलिटी प्रोडक्ट, यूटिलिटी फ्रंटियर है, यूटिलिटी कंजम्पशन फ्रंटियर। अब ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलफेयर। अब एक थ्योरम आता है, इफ यूपीएफ इज कन्वेक्स। सो अगर ये जो हमारा यहाँ जो बना है ये कन्वेक्स है, ठीक है, ये कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें ये कन्वेक्स बनता है। अगर हमारे जो आईसीज होते हैं बेसिकली वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, तो ये जो है हमारा कॉन्केव शेप, कॉन्केव है बट कॉन्वेक्स इसका जो सेट है, बेसिकली फंक्शन इज कॉन्वेक्स बट ये इसकी जो शेप है दैट इज कॉन्केव इन अ 2D। ठीक है, सो इफ द फंक्शन इज कॉन्वेक्स, basically the shape is concave, then every point is a maximum for a weighted sum of utilities welfare function। वही पॉइंट जो मैंने समझाया था कि हर पॉइंट चूज हो सकता है डिपेंडिंग कि हम कौन सा किस इंडिविजुअल की यूटिलिटी को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, ए की या बी की, राइट। welfare function is all welfare function is a way to single out. So basically, out of all the Pareto efficient points, welfare function is a way through which it can be chosen. The point of welfare maximum can be chosen. उसके बाद ऑथर ने
एक तरह के वेलफेयर फंक्शंस को डिफाइन करा है बर्ग्स एंड सैमुअल्सन। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो द डिफरेंस इज, जो अभी तक हमने वेलफेयर फंक्शंस करे वो ऐसे थे। तो हम ये देखेंगे हर U1 में भी एक्स आ रहा था, ये एक्स आ रहा था। एक्स का मतलब ये था कि इस एक्स में इस इंडिविजुअल वन को कितना मिलेगा, टू को क्या क्या मिलेगा, सब स्पेसिफाई था। लेकिन बर्गसन ने बोला कि हर इंडिविजुअल सिर्फ अपनी यूटिलिटी से कंसर्न होता है, अपने बंडल से कंज्यूम कंसर्न होता है, तो यहाँ एक्स की जगह X1 आना चाहिए। सो दैट मीन्स देर इज नो कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, मीनिंग कि उसको दूसरों की कंजम्पशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ एक्स की जगह X1 आना चाहिए, स्मॉल चेंज। एंड दिस वॉज डिफाइंड एज बर्गसन सैमुअल्सन वेलफेयर फंक्शन। This was all about how you choose a social maximum. Now we move on to a new concept, which is fair allocations. It's a completely different concept. ठीक है, उससे रिलेटेड नहीं है, अभी तक वाला सारा कनेक्टेड था। दिट्स अ एडिशन, दिट्स अ स्मॉल एडिशन टू वॉट एवर द चैप्टर इज। सो हम सबसे पहले फेयर एलोकेशन को डिफाइन करते हैं। कोई भी एलोकेशन को हम फेयर तब बोलते हैं, पॉइंट नंबर वन, जब वो इक्विटेबल होती है। इक्विटेबल का मतलब ये नहीं है कि दोनों एजेंट्स के पास इक्वल इक्वल बंडल्स होंगे, नो। इक्विटेबल का मतलब होता है दैट नो एजेंट prefers any other agent's bundle over his own. That means no agent envies the bundle of other person. So for example, एक इंडिविजुअल के पास, सपोज एक इंडिविजुअल के पास सपोज एक इंडिविजुअल के पास 1,2 है, दूसरे इंडिविजुअल के पास 2,1 है। तो अब इस केस में अगर हम ये बंडल 2,1 ए को दे दें तो तो उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं। सो दैट मीन्स ही डज नॉट एनवी द बंडल ऑफ बी, ही इज वेरी मच हैप्पी विद हिज ओन बंडल। तो यानी कि ही डज नॉट वांट द बंडल ऑफ बी एंड बी ऑल्सो डज नॉट वांट द बंडल ऑफ ए। इसमें हम बोलते हैं दैट द एलोकेशन इज इक्विटेबल, और वी ऑल्सो से दैट ए डज नॉट एनवी बी एंड वाइसा वर्सा। इस एलोकेशन को हम सिमेट्रिक भी बोलते हैं, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, परेटो एफिशिएंट। बेसिकली जो भी ये जो ए और बी है, जब हम आईसीज बनाएंगे तो वो टेंजेंट होने चाहिए। दैट मीन्स दोनों के पास अभी कुछ म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इफ दे ट्रेड ऑफ एनी वन ऑफ देम इज बेटर ऑफ, नो वन विल बी बेटर ऑफ आफ्टर मोर ट्रेड। जो म्यूचुअल एडवांटेजेस हैं ट्रेड के वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है। सो अब एक तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जब पूरी होंगी तो हम बोलेंगे वो जो एलोकेशन है वो फेयर एलोकेशन है, पॉइंट नंबर वन। तो नाउ द ऑथर सेज वी विल कंसिडर वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलोकेशन विच इज इक्वल डिविजन। सो नाउ इक्वल डिविजन माने कि स्टार्टिंग से अगर हमारे पास 10 यूनिट्स ऑफ X1 थे और 10 यूनिट्स ऑफ X2 थे, तो हमने क्या करा, ए को 5,5 दे दिया, बी को 5,5 दिया। तो क्या ये एलोकेशन फेयर होगा? द पॉइंट इज, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही वो फेयर हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि X1 जो गुड है वो ए को इतना पसंद नहीं है और बी को X2 ज्यादा पसंद नहीं है। तो यानी वो क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे जब हम इक्वल डिवीजन है तो ए और बी क्या करेंगे, कुछ ट्रेड में पड़ेंगे, राइट? सो व्हेन द एजेंट्स हैव डिफरेंट टेस्ट दे विल ट्रेड इक्वल डिवीजन। स्टार्ट वो इक्वल डिवीजन से करेंगे बट बाद में वो ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग के बाद व्हाट विल हैपन इज दे विल अचीव अ परेटो एफिशिएंट पॉइंट। अब स्टार्ट किया था इक्वल डिवीजन से, ट्रेड करने के बाद परेटो एफिशिएंट पॉइंट पे आए। अब पॉइंट ये है, क्या ये परेटो एफिशिएंट पॉइंट फेयर है या नहीं है? परेटो एफिशिएंट तो है, यानी एक प्रॉपर्टी तो पूरी हो गई। अब फेयर तब होगा जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल का बंडल एनवी नहीं करेगा। अब नेचुरली सी बात है, अपनी मर्जी से अगर ट्रेड करा है तो एनवी क्यों ही करेगा, राइट? तो आइडली फेयर होना भी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ऑथर एक एग्जाम्पल देकर समझाता है। सो ऑथर सेज कि तीन लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दे इन्वॉल्व इन आर्बिट्री ट्रेडिंग। बेसिकली अपने आप, कोई फ्री मार्केट्स नहीं है, अपने आप आपस में ट्रेड करते हैं। इसमें जो ए और बी है दोनों के सेम टेस्ट है, और जो सी है उसके जो टेस्ट है वो थोड़े अलग हैं। ठीक है, वो उसकी प्रेफरेंसेस अलग है।
अब क्या होता है, ए और सी मिलते हैं, ठीक है, ए और ट्रेड कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि सी की प्रेफरेंसेस अलग हैं, ए की अलग है, तो स्टार्ट तीनों को इक्वल बंडल मिलता है, तो दोनों ट्रेड करते हैं। अब लेकिन क्या होता है, बी रह जाता है, बी ट्रेड नहीं कर पाता। तो इस केस में व्हाट विल हैपन इज बी एनवीज ए। तो ऑल्दो उन्होंने इक्वल डिवीजन से स्टार्ट किया था, पर ट्रेड के बाद व्हाट हैपेंड वाज कि यहां पर बी एनवी करा, यानी ये कौन सा पॉइंट है, यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल नहीं था, क्योंकि एक दूसरे को एनवी कर रहा है। परेटो एफिशिएंट है बट इक्विटेबल नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल डिवीजन से अगर स्टार्ट हो और परेटो एफिशिएंसी अचीव हो जाए तो वो फेयर होगा। फेयर होने के लिए इट हैज़ टू बी इक्विटेबल एज वेल। पर ज़रूरी नहीं है इक्विटेबल कभी भी ना हो। यहाँ पर हमने आर्बिट्री ट्रेडिंग का केस करा, अब हम एक दूसरा मार्केट इक्विलिब्रियम का केस करेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम, तो इज देयर एनी वे टू गेट टू अ फेयर एलोकेशन? फेयर एलोकेशन बेसिकली जहां पर कोई भी किसी को एनवी ना करे, एक परेटो, सबसे पहले वो परेटो एफिशिएंट हो और कोई भी एनवी ना करे। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ। हमने इक्वल डिवीजन से स्टार्ट करा, ठीक है। इक्वल डिवीजन माने ये इंडिविजुअल ए था, ये इंडिविजुअल बी था, दोनों को हाफ ऑफ गुड्स दे दिए, गुड वन का, गुड टू का, दोनों को हाफ ऑफ दे दिए। ड्राइंग में हाफ पूरा नहीं लिख रहा सिमेट्रिक, बट हाफ ऑफ दे दिए। अब जब वो यहाँ थे, अब हम देखते हैं उनके जो आईसीज थे वो ऐसे थे, यानी वो इंटरसेक्ट कर रहे थे, यानी स्टार्टिंग में इक्वल डिवीजन जो थी वो परेटो एफिशिएंट नहीं हुई। लेकिन हमें पता है कि जब फ्री ट्रेड होता है तो यहाँ पर वो परेटो एफिशिएंसी अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब उन्होंने परेटो एफिशिएंसी अचीव कर ली। अब देख, पहली प्रॉपर्टी तो फेयर की क्या थी, परेटो एफिशिएंसी तो पूरी हो गई, पर क्या ये इक्विटेबल है? इक्विटेबल है, या तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज इसकी पूरी हो जाएगी तो हम बोलेंगे दिस एलोकेशन इज फेयर। सो इसको करने के लिए क्या करते हैं, स्वैपिंग करते हैं। स्वैपिंग मीन्स यहां पर ए के पास कितना है, इतना, गुड वन और गुड टू। बी के पास कितना है, गुड वन एंड गुड टू। अब हम क्या करते हैं, बी का बंडल ए को दे देते हैं और ए का बंडल बी को दे देते हैं। तो यहां पर इंडिविजुअल रीडिंग्स में दिखाता है कि वो यहां पर किसी पॉइंट में आ जाएगा। तो ये जो बंडल है ये है तुम्हारा स्वैप्ड बंडल। तो आप हम ये देखेंगे कि क्या ये स्वैप्ड बंडल दोनों इंडिविजुअल ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं या नहीं। तो अगर मैं आईसी सिंपल बना के देखूं, ये यूटिलिटी फंक्शन है किसका, इंडिविजुअल ए। अगर आप, इफ यू विल ड्रॉ दिस यू विल सी, यहाँ पर जो ए को यूटिलिटी मिल रही है वो कम मिल रही है, और बी को भी यहाँ जो यूटिलिटी मिलेगी वो ई वाले पॉइंट से कम मिलेगी। तो यानी हम ये देखते हैं कि स्वैप बंडल पे जो दोनों को यूटिलिटी मिलती है ए और बी को, वो कम मिलती है। तो यानी कि they do not envy each other's bundle, meaning this is Pareto efficient as well as equitable. That means this allocation is fair. ठीक है, एक तो था हमने डायग्रामेटिकली देख लिया, इसका क्लियर डायग्राम इज हेयर एंड इन द रीडिंग्स एज वेल। स्वैप्ड को हमने बनाया, हम देखते हैं स्वैप पे दोनों की यूटिलिटी कम हो जाती है। दैट मीन्स ये एलोकेशन फेयर भी है और इक्विटेबल भी, मतलब इक्विटेबल और परेटो एफिशिएंट है, दैट मीन्स फेयर है। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस चैप्टर वी हैव प्रूव्ड मैथमेटिकली। सपोज करो ए एनवीज बी, राइट। तो ए के पास कौन सा बंडल है, ये वाला। बी के पास कौन सा बंडल है, ये। तो गुड वन, गुड टू, और नीचे वाला जो है वो एजेंट का नाम है। तो यानी ए यहाँ पर, अगर आप देखो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, तो दैट मीन्स ए की जो प्रेफरेंस है उसको बी का बंडल ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू हिज बंडल, राइट। सो नाउ द पॉइंट इज, अगर उसको बी का बंडल ज्यादा पसंद है, अब हमें पता है कि जब ए ने ये वाला बंडल चूज करा, ये वाला बंडल इक्विलिब्रियम था ना, क्योंकि दिस बंडल इज द इक्विलिब्रियम, तो उसने एमआरएस को इससे इक्वेट करा होगा, ठीक है, विद द गिवन मनी इनकम दिस बंडल वाज द बेस्ट फॉर हिम। तो अगर उसको बी का बंडल पसंद है, सो उसका जो प्राइस है बेसिकली बी का बंडल जो होगा उस टाइम पे अफोर्डेबल नहीं होगा, तभी
ए जो है उसको खरीद नहीं पाया, क्योंकि अगर अफोर्डेबल होता तो वो ए ना चूज करके बी चूज करता, अगर वो प्रेफर करता था। वाई? बिकॉज ही इक्वेट्स दिस। तो मे बी बंडल बी वॉज नॉट अफोर्डेबल एट दैट टाइम। सो दैट मीन्स हमने क्या करा, ये बंडल ए की कॉस्ट है, ये बंडल बी की कॉस्ट है, तो यानी इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी बंडल बी की एज कंपेयर टू दिस। बट नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई दिस इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज वी स्टार्टेड विद अ केस ऑफ इक्वल डिविजन। इक्वल डिविजन बेसिकली जितना वैल्यू ऑफ बंडल ए के पास था उतना ही वैल्यू ऑफ बंडल बी के पास था। तो ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में जो बी के पास जो बी की वैल्यू ऑफ बंडल है वो ज्यादा है। दिस कैन नॉट हैपन। सो दैट मीन्स दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर हम ये करें तो ये हमने कॉस्ट निकाली बी के बंडल की x1 दिस, और ये हमने इंडाउमेंट निकाली ए की, तो यानी उसकी जो ए की इनकम थी दैट वाज लेस देन द टोटल प्राइस प्राइस दैट इज रिक्वायर्ड टू बाय बीस बंडल। बट दिस कैन नॉट हैपन। वाई? बिकॉज जो स्टार्टिंग की जो दोनों थी, ये वाला प्राइस वॉज इक्वल टू एम बी, एंड एम बी और एम ए जो थी इक्वल। वी स्टार्टेड विद इक्वल डिविजन, दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स जो हमने स्टार्टिंग में एजम्पशन लिया दैट ए एन बी इज बी, दिस इज फॉल्स। तो हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं कि ये फॉल्स है और ये भी। सो हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर दो एजेंट्स थे या दो वेराइटी ऑफ एजेंट्स थे जब वो ट्रेड में इन्वॉल्व हुए, राइट, तो जो आउटकम था वो परेटो एफिशिएंट भी था और इक्विटेबल भी था, यानी दोनों मिला के द एलोकेशन वाज फेयर, राइट। एंड दिस वाज नॉट ट्रू जब वो ट्रेड की जगह आर्बिट्री ट्रेडिंग में पड़े। ये फॉर्मल मार्केट है, ये फॉर्मल मार्केट नहीं थी। सो दैट मीन्स अ कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम फ्रॉम इक्वल डिविजन मस्ट बी अ फेयर एलोकेशन। मार्केट मैकेनिज्म preserves equity. Equity क्या है? Pareto efficiency नहीं, this is if original allocation is equally divided, final allocation must be fair, और fair क्या है? Equitable plus Pareto efficient. So this finishes your general equilibrium, and this finishes 50% of course. So kindly go through the general equilibrium and the monopoly videos very, very thoroughly. Very, very important topics. So that before we start with the next part, which is a little unrelated to whatever we did till now, so you are thorough with it till until then.